ڈنک کی چوٹ پر کہو کہ ہم سنی ہیں اور ڈنک کی چوٹ پر بولا کرو کہ وہابیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے رشتہ داریاں مت کرو. سب سے زیادہ وہابیت پھیلتی ہے تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر پھیلتی ہے. کیا سنیوں کی لڑکیاں مر گئی کہ وہابی کے گھر کی لڑکیاں لاتے ہو؟ عاشق رسول کہلانے کا ڈانکا پیٹتے ہو، دعوے کرتے ہو نبی سے محبت کرتے ہو اور غدار رسول کی بیٹی لے کر آتے ہو اور ذہنوں میں یہ بٹھاتے نہیں نہیں ہمارے ماحول میں رہ کر سدھر جائیں گی. ابے کیا سدھریں گی؟ پورا گھر بگاڑ دیں گی. ایک ڈرام شربت ہو اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، پیوں گے وہ شربت؟ کیوں بھائی؟ سارے ڈرام نے اسے ایک قطرے ناپاک کو پاک کیوں نہیں کر دیا؟ پتا چلا ساری چیزیں مل کر ایک قطرے کو پاک نہیں کر سکتی، لیکن ایک ناپاک قطرہ سارے پاک کو ناپاک کر دیتا ہے. کہ رد وہابیہ فرض اعظم ہے، فسق ہے، یہ فسق ہے، کافر نہیں ہے. ابھی تو آگے میزائل لنک کے ڈال بھی نہیں رہا ہوں، پہلے کیا ڈلا ہوا ہے اسی کی چیخیں بہت ہیں، آگے ڈالوں گا. اس تحقیق کا نام ہوگا حسینی زلزلہ. اس کھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ کھاٹ توڑ دینا، جس برتن میں پانی پی لے وہ برتن پھینک دینا. اس لیے کہ میرا اپنا اعتقاد تو یہ ہے کتا منہ ڈال دے تو برتن پاک ہو سکتا ہے، وہاں بھی منہ ڈال دے تو برتن پاک نہیں. تم سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج کسی کا مرید، کسی کا چاہنے والا وہابیوں کے ساتھ کھاتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ کھاتا ہے، پیر کی زبانیں بند نظر آتی ہیں، پیر خاموش ہوتا ہے، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کا مرید وہابیوں کے ساتھ کھاتا ہے تو کیا پیر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے مرید کا گریبان پکڑا جائے؟ بے شک میں نے کہا سنو، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسجدوں سے وہابیوں کو نکالنا یہ فرض ہے، فرض. یہ کون بتائے گا؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا ایسا ہے جیسے کہ عینی مثل سور. اعلیٰ حضرت نے گھر کی بات نہیں کہی تھی، اعلیٰ حضرت نے ترجمان نبی کی ترجمانی کری تھی. کتا اور وہابی میں بھی کوئی فرق نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کتا کسی اور کی نجاست چاٹتا ہے اور وہابی خود کی نجاست چاٹتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات تو کہ وہابی دیوبندی بدعقیدہ یہ اپنے عقائد کفریہ باطلہ کی بنا پر کافر و مرتد ہیں، لہٰذا ان سے میل جول رکھنا، ان کے ہاں دعوت کھانا، ان کو اپنے گھر دعوت کھلانا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. وہابی اور نجدی کا کوئی ایمان تھوڑی ہے، یہ دونوں ایک ہیں، ان سے جدا شیطان تھوڑی ہے. یہ دونوں ایک ہیں، ان سے جدا شیطان تھوڑی ہے. تمہارے گھر جو آ جائیں بھگاؤ مار کے جوتا، تمہارے گھر جو آ جائیں بھگاؤ مار کے جوتا. فقط لعنت ہے یہ گھر کی کوئی مہمان تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات یہیں مکمل نہیں ہوتی. یوں تو سب کہہ دیں گے ہم آقا کو جانتے ہیں، یوں تو سب کہہ دیں گے ہم آقا کو مانتے ہیں. بات تو مکمل یہاں ہوگی کہ نہ رکھو غیر سے کام، وہابی سے کام نہیں رکھنا، دیوبندی سے کام نہیں رکھنا، نجدی سے کام نہیں رکھنا، رافضی سے کام نہیں رکھنا، ہر ایک غدار رسول سے کام نہیں رکھنا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تم بھی اگر مسلمان دنیا سے جانا چاہتے ہو تو یہ دو بات پر عمل کر لو، آقا کو مانو، آقا والوں کو مانو، اور آقا کے غداروں سے نفرت. بہت زیادہ ہیں، بہت تعداد کے اندر ہیں، لیکن 10 ویڈیو کے اندر 11 حرام خوروں کو میں نے دکھایا آپ کو. یہ ایسے حرام خور لوگ ہیں نا، مسلمانوں کے لیے RSS اور بجرنگ دل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں میں، یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ حرام خور لوگ، یہ حرام خور مسلمانوں کو ہر روز مارتے ہیں. ہر روز یہ نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کو ایک جگہ پر نہیں ہونے دیتے. اتنے خطرناک حرام خور لوگ ہیں یہ. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھوڑی بہت عقل دی ہے، تھوڑا بہت دماغ دیا ہے تو سمجھیے ان حرام خوروں کی چال کو سمجھیے. یہ حرام خور مسلمانوں کو آج ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتے. ہمارا اللہ ایک، ہماری قرآن ایک،
हमारी हदीसें एक, हमारा रसूल एक, फिर भी ये हराम खोर है नहीं है। ये मुसलमानों को कुरान और हदीस पर, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर जमा नहीं होने देते। ये इतने बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं सही कह रहा हूं कि ये हराम खोर लोग है ना, ये मुसलमानों के लिए आरएसएस और बजरंग दल से भी ज्यादा खतरनाक है। ये हकीकत बात है, आप तहकीक कर लीजिए। मुझे बताइए कि जब हमारा रब एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारी कुरान हदीसें एक हैं, फिर इनको क्या दिक्कत आ रही है? इन हराम खोरों को क्या परेशानी आ रही है? फिर ये मुसलमानों को एक जगह पर क्यों नहीं होने देते? क्या तकलीफ आ रही है इनको? मौलवियों का काम है कि कुरान और हदीस पर एक जगह पर मुसलमानों को जमा किया जाए, लेकिन नहीं, ये हराम खोर, मैं कह रहा हूं ना, ये हराम खोर आरएसएस और बजरंग दल से भी खतरनाक है, जो मुसलमानों को एक जगह पर नहीं होने देते, आपस में नफरत फैलाते हैं, रिश्तेदार में नफरत फैलाते हैं, भाई भाई में नफरत फैलाते हैं। ये हराम खोर इतने खतरनाक लोग हैं ये। इसलिए मुसलमानों को मैं आगाह कर रहा हूं, मुसलमान मेरे प्यारे भाइयों, कुरान आपके सामने है, कुरान का तर्जुमा पढ़िए। अगर आपको बचना है इन हराम खोरों से और सच्चा दीन आपको पाना है और सच्चे मुसलमान आपको बनना है, तो कुरान का तर्जुमा पढ़िए। ये हराम खोर आपको कुरान के पास नहीं जाने देते। हदीस बुखारी मुस्लिम पढ़िए, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन ये हराम खोर आपको हदीसों के करीब नहीं जाने देते। इनको पता, इन हराम खोरों को पता है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, हमारा पेट भरना बंद हो जाएगा। इन हराम खोरों को ये पता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान वाले हैं और आप चाहते कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल करिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुरान मजीद की सूरह अन-निसा आयत नंबर 69 69 अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे तो वो लोग जन्नत में उन लोगों के साथ होंगे जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, और वो लोग अंबिया, सिद्दीकीन, शहुदा और सालिहीन लोग हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो मेरे और मेरे रसूल का हुक्म मानेगा, मैं उसको जन्नत में उन लोगों के साथ में रखूंगा जिन लोगों के हक में मैंने जन्नत नसीब कर दी है, उनको इनाम दे दी है जन्नत में, मैं उन लोगों के साथ में उसको रखूंगा। यहां पर किसी मौलवी की पैरवी का जिक्र नहीं है। ये हराम खोर, इनके बाप दादा ना, उन्होंने अपनी दुकानें खोली, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, मुसलमानों को पकड़ा गए, बोलिए हमारा सच्चा दीन है, और ये इन्हीं की औलादें आकर हराम खोरी कर रहे हैं, मुसलमानों को बहका रहे हैं। इनसे बचो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। फिर कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 34 कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ठुकराकर कुफ्र अपना लिया है और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, तो वो लोग अगर कुफ्र की हालत में मर गए तो उन्हें हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आज कुरान और हदीस की तरफ आने से रोक रहे मुसलमानों को, ये हराम खोर। बोले कुरान मत पढ़िए, कुरान का तर्जुमा मत पढ़िए, गुमराह हो जाओगे, आपकी समझने की चीज नहीं है। हदीस बुखारी मुस्लिम मत पढ़िए, आपकी समझने की चीज नहीं है। ये हराम खोर मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ नहीं आने देते। ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ये खुद नहीं आते और मुसलमानों को भी नहीं आने देते। ये अपने मौलवियों की लिखी हुई किताबों की तरफ लेकर जाते हैं कि हमारा जो मौलाना लिख गया वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। इसीलिए ये नफरत फैल रही। आज ये नफरत क्यों फैल रही है मुसलमानों के अंदर? ये किताबों की वजह से। जो मौलाना आए, उन्होंने अपनी दुकानें खोली, अपना मसलक बनाया, अपनी किताबें लिखी, और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाकर वो हराम खोर चले गए दुनिया से। और उन्हीं हराम खोरों की ये औलादें हैं, उनको फॉलो करने वाले हराम खोर आज वही काम कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर। फिर आ जाइए सूरह अल मोमिन आयत नंबर 60। तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन इन हराम खोरों के जो मौलाना आए, वो हराम खोर दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि जो फौत हो चुके हैं लोग, उनको पुकारो, वो दुआ कबूल करती हैं, अल्लाह उनके जरिए देता है, वो दुख दर्द दूर करते हैं, वो हाजत रवाई करते हैं। ये हराम खोरों के इन मौलवियों ने अपनी किताबों के अंदर ये लिखा, अल्लाह के खिलाफ लिखा। अल्लाह कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इनके मौलवियों ने लिखा कि फौजशुदा लोग हैं ना, वो दुआ कबूल करते हैं। आज इसी पे लड़ाई हो रही है। फिर आज ये सूरह अल अनआम आयत नंबर 64 अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, अल्लाह ही तुम्हें हर दुख और तकलीफ से निजात देता है, फिर भी तुम दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। अल्लाह ताला खुद कहता है कि अपने रसूल से, कि लोगों से कह दो कि हर दुख और तकलीफ से निजात अल्लाह देता है, फिर तुम दूसरों से निजात क्यों मांग रहे हो? लेकिन इनके जो हराम खोर बैठे हुए हैं, इन हराम खोरों के जो आए ना मौलाना, जो हराम खोर मर गए, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करके चले गए, उन मौलानों ने अपनी किताबों में लिखा
कि जो फौत हो चुके हैं लोग, जो कब्रों में दफन कर दिए गए वली औलिया, वो दुख और तकलीफ से निजात देते हैं, उनसे मांगो। और अल्लाह कहता है कि मैं दुख और तकलीफ से निजात देता हूं। अब इनकी हराम खोरी देख लो। ये मैं कह रहा हूं, ये हराम खोर लोग है ना, ये बजरंग दल और आरएसएस से भी खतरनाक है मुसलमानों के लिए। इनसे बचो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। फिर सूरह हूद आयत नंबर 6, जमीन पर चलने वाली अल्लाह की मखलूक में से कोई ऐसा जीव नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ले रखा हो। अब अल्लाह कहता है कि दुनिया के ऊपर कोई ऐसा जीव नहीं जिसका रिज़्क मैंने अपने जिम्मे नहीं ले रखा हो। लेकिन इन हराम खोरों के मौलवी जो मर गए, जो जहन्नम में चले गए, उन्होंने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि फौजशुदा लोग रिज़्क देते हैं, उनसे मांगो। और ये हराम खोर, उनकी औलादें, उनकी पैरवी करने वाले आज वही दावत दे रहे हैं कि फौजशुदा लोग रिज़्क देते हैं। फिर आज सूरह हूद आयत नंबर 6, जमीन पर चलने वाली अल्लाह के मखलूक में से कोई ऐसा जीव नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ले रखा हो। अल्लाह खुद कहता है कि मैंने हर जीव जिसके अंदर जान डाली उसका रिज़्क मैंने अपने जिम्मे ले रखा है, अल्लाह खुद कहता है। लेकिन इन हराम खोरों के मौलवी लिख गए अपनी किताबों के अंदर कि रिज़्क इनसे मांगो, फौजशुदा लोगों से, कब्र वालों से मांगो, वो देते हैं। और यही दावत ये हराम खोर दे रहे हैं, आज नफरत फैला रहे मुसलमानों के अंदर। ये मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ नहीं आने देते, ये हराम खोर लोग हैं, इनसे बचिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। फिर आज ये कुरान की सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 60, जितने भी जानवर हैं अपनी रोजी रोटी नहीं उठाए फिरते हैं, अल्लाह ही उनको रोजी रोटी देता है और तुमको भी रोजी रोटी अल्लाह ही देता है। अब रोजी रोटी कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन हराम खोर ये है ना, ये कहते हैं कि बाबा जी देते हैं, जो फौत हो चुके हैं, जो कब्र में दफन हो चुके हैं। और ये इसलिए कहते हैं कि इनके जो हराम खोर मौलाना आए, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा और पकड़ा गया कि हमारा दीन यही है, इसको पढ़ते रहो। फिर आज ये सूरह अश-शूरा आयत नंबर 12, आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां अल्लाह ही के पास है, जिसको चाहता है वो उसे खुली रोजी देता है और जिसको चाहता है नपी तुली रोजी देता है, और वो हर चीज का इल्म रखता है। अब देखिए, अल्लाह ताला कहता है कि सारे खजानों की चाबियां मेरे पास है, लेकिन ये हराम खोर कहते हैं कि नहीं, बाबा जी के पास है, जो मर गया कब्र के अंदर है, वो देता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसको चाहूं खुली रोजी देता हूं, ज्यादा देता हूं, जिसको चाहता हूं नपी तोली रोजी देता हूं। लेकिन ये हराम खोर कहते हैं कि नहीं, बाबा जी जो मर गया ना, जो मिट्टी में मिल गया, वो देता है, अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया है। आज मुसलमानों को इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं हराम खोर। ये मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन हराम खोरों से बचिए। ये वो हराम खोर हैं जो आपको कुरान और हदीस से दूर कर रखा है, आप लोगों को कुरान और हदीस के करीब नहीं जाने देते, अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं जाने नहीं देते। ये हराम खोर आपको बेवकूफ बना बनाकर अपना पेट भरते हैं, मुसलमानों में आपस में नफरत फैलाते हैं। ये हराम खोर लोग आरएसएस और बजरंग दल से भी खतरनाक है मुसलमानों के लिए। इनसे बचिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इनसे बचिए, सच्चाई की तरफ आइए।